the threat isn't over or gone yet. War against cyber criminals can't be won. یہ بات ہے 8 سپٹمبر 2006 کی، جب ہنگری کے شہر ٹیبرسن میں موجود ایک بہت ہی ٹاپ کلاس کمپنی پر ہیکنگ اٹیک پرفارم کیا جاتا ہے۔ اس کمپنی کا نام تھا سینسریون کمپنی، جو کہ ہنگری میں موجود تھی، اور اس کمپنی میں الیکٹرانکس کا سامان تیار کیا جاتا تھا۔ ان دنوں اس کمپنی کے سٹاکس آسمان چھو رہے تھے، بلکہ یہ کہنا بھی غلط نہیں ہو سکتا کہ اس کمپنی کے سٹاکس کی وجہ سے ہی ہنگری جیسے کنٹری کا گزارا ہو رہا تھا، کیونکہ یہ کمپنی بہت ہی زیادہ انکم جنریٹ کر کے دینے والی کمپنی تھی، جس سے پورے ہنگری کنٹری کا گزارا چل رہا تھا۔ ویسے تو اسی وجہ سے ہی اس کمپنی سینسریون پر بہت سارے کنٹریز کی جانب سے ہیکنگ اٹیکس پرفارم کیے گئے تھے، مگر کیونکہ اس کمپنی میں موجود ایک بہت ہی پاورفل سائبر سیکیورٹی کی ٹیم تھی، جو کہ ان تمام کیے جانے والے ہیکنگ اٹیکس کو ناکارہ اور ناکام بنانے میں کامیاب تھے۔ مگر اس بار اس سینسریون کمپنی کے سرورز پر اتنا خطرناک ہیکنگ اٹیک پرفارم کیا گیا تھا، جس کی وجہ سے سینسریون کمپنی کی سائبر سیکیورٹی ٹیم بھی ناکام ہو گئی، اور وہ لوگ اس ہیکنگ اٹیک کو روک نہیں سکے۔ لیکن یہاں پر سب سے زیادہ حیران کر دینے والی بات یہ تھی کہ ہیکر نے اس کمپنی کے سرورز کو بہت ہی زیادہ خطرناک طریقے سے ہیک تو کر لیا تھا، لیکن ابھی تک جبکہ اس ہیکنگ اٹیک کو پورے 3 دن گزر چکے تھے، ابھی تک اس ہیکر نے اس کمپنی کے بینک اکاؤنٹس کو خالی تک نہیں کیا تھا، اور نہ ہی اس کمپنی کے پرائیویٹ ڈیٹا کو کوئی نقصان پہنچایا تھا۔ اس وجہ سے سینسریون کمپنی کے آفیشلز یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ لوگ ہونے والے اس ہیکنگ اٹیک کی نیوز کو میڈیا میں بریک نہیں کریں گے، ورنہ پورے ہنگری کے لوگ اس وجہ سے ڈر جائیں گے کہ اتنی بڑی کمپنی جو کہ ہنگری کی بیک بون ہے، اس کو اگر ہیک کر لیا جاتا ہے تو پھر ان کے بینک اکاؤنٹس کیا چیز ہیں۔ یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں جو کہ بہت ہی سیکرٹ بات تھی، وہ یہ کہ ہنگری کی اس سینسریون کمپنی نے فرانس کی ڈیسالٹ کمپنی کے ساتھ مل کر کمبائن بزنس کر رہے تھے، یعنی ڈیسالٹ گروپ والے اور سینسریون گروپ والے ایک ساتھ مل کر اپنی اپنی کمپنیز کے اندر انویسٹمنٹ کر رہے تھے، یعنی فرانس کا ڈیسالٹ گروپ اور ہنگری کا سینسریون گروپ ایک دوسرے کے بزنس پارٹنرز تھے۔ ان دونوں نے اپنی اس ڈیل کو بہت زیادہ خفیہ رکھا تھا، اور یہ ایک بہت ہی زیادہ سیکرٹ ڈیل تھی۔ وہ اس لیے کہ سینسریون گروپ کو ہنگری کی گورنمنٹ بہت زیادہ سپورٹ کرتی تھی اور اس کے اندر بہت زیادہ انویسٹمنٹ بھی کرتی تھی۔ وہ لوگ یہ بالکل بھی نہیں چاہتے تھے کہ سینسریون کمپنی کسی اور کنٹری کے ساتھ مل کر کولیکٹیو بزنس کرے، یا کسی اور کنٹری کی بڑی کمپنی کو اپنے ساتھ بزنس پارٹنرشپ دے۔ ہنگری کی گورنمنٹ صرف یہی چاہتی تھی کہ سینسریون کمپنی سے ان کو جتنا زیادہ سے زیادہ نفع حاصل ہو وہ اپنے کنٹری کے اندر ہی خرچ ہو، اس طرح سے ان کے کنٹری کا بھی بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اس طرح ساتھ مل کر کام کرنے میں ان دونوں ہی گروپس کو بہت زیادہ فائدہ ہو رہا تھا۔ جہاں پر پہلے ان کے مارکیٹ شیئرز کی ویلیو بہت کم تھی، وہاں پر اب ان کے مارکیٹ شیئرز کی ویلیو 200 گنا زیادہ بڑھ چکی تھی۔ وہ لوگ اسی وجہ سے بالکل بھی کمپرومائز نہیں کر سکتے تھے اپنی اپنی کمپنیز کی سیکیورٹی پر، کیونکہ اگر ان کا پرائیویٹ ڈیٹا لیک ہوتا تو ساتھ میں اس سیکرٹ ڈیل کی کاپی بھی گورنمنٹ تک پہنچ جاتی۔ اس وجہ سے وہ لوگ اپنی کمپنیز کی سیکیورٹی پر کسی بھی قسم کا کمپرومائز نہیں کرتے تھے، اور وہ لوگ اپنی کمپنی کے سیکیورٹی سسٹم کو بیسٹ سے بیسٹ بنانے میں لگے رہتے تھے، صرف اسی وجہ سے کہ کہیں اس ڈیل کا گورنمنٹ کو پتہ نہ لگ جائے۔ لیکن وہاں پر سب اسی بات کو لے کر بہت زیادہ حیران تھے کہ ہیکر نے ان کی کمپنی کو ہیک بھی کر لیا، اور نہ ہی اس کے کسی بینک اکاؤنٹ کو خالی کیا، اور نہ ہی اس سیکرٹ ڈیل کو ہیکر حاصل کر سکا۔ یہ ایسے سوالات تھے جن کے جوابات کی تلاش ان کو پچھلے 3 دنوں سے تھی، اور اس کے بعد جب سینسریون کمپنی والے ڈیسالٹ کمپنی کے ہیڈ کے ساتھ اس انفارمیشن کو شیئر کرتے ہیں کہ ان کے سسٹم کو ہیک کیا گیا ہے،
और ना ही अब तक उस हैकर ने उनके सिस्टम को कोई नुकसान पहुंचाया है, तो डिसॉल्ट ग्रुप का हेड फौरन ही जवाब देता है कि इस हैकिंग अटैक के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही आदमी हो सकता है। वो कहता है कि वो इतना तेज हैकर है कि जहां पर उसको पकड़वाने वालों की सोचें खत्म होती हैं, वहां से वो सोचना शुरू करता है। वो कोई और नहीं और ना ही अब आपको मजीद भाग दौड़ करने की जरूरत है, क्योंकि ये काम सिर्फ अस्त्रा हैकर ही कर सकता है। और यहाँ पर मैं आपको बताता चलूं कि ये डिसॉल्ट ग्रुप का हेड कोई और ना था, बल्कि ये वही बर्नार्ड स्कॉर्शी था जिसको सालों से अस्त्रा हैकर ने परेशान करके रखा हुआ था, और जिसका जिक्र मैं अपनी इस अस्त्रा सीरीज के पार्ट 2 में भी कर चुका हूँ। सो अब डिसॉल्ट ग्रुप और सेंसरियन ग्रुप वाले सिर्फ और सिर्फ यही जानना चाहते थे कि अस्त्रा हैकर ने इस कंपनी को हैक तो कर लिया, लेकिन अब तक उसने इसके बैंक अकाउंट्स को ना खाली किया और ना वो सीक्रेट डील वाली फाइल चुराई, और ना ही अस्त्रा हैकर ने इस कंपनी को कोई नुकसान पहुंचाया। लेकिन इस सवाल का जवाब उन लोगों को तकरीबन अब से 2 माह बाद मिला, 8 नवंबर 2006 को, जब बर्नार्ड स्कॉर्शी को अस्त्रा हैकर ने एक ईमेल के जरिए ये बताया कि उसने ही ये सारे का सारा हैकिंग अटैक परफॉर्म किया था। मजीद उस ईमेल में लिखा होता है कि तुम लोग अपनी डिसॉल्ट कंपनी को, जिसको मैं पिछले 6 सालों तक हैक करता आया हूँ, उसको तो बचा नहीं सके और ना ही कुछ कर पाए, और अब जिस कंपनी के साथ तुम लोग सीक्रेट डील्स करके बैठे हो, उसके सिक्योर सिस्टम को भी मैं हैक कर चुका हूँ, और तुम लोग मेरा अब तक कुछ बिगाड़ नहीं सके। और उस ईमेल के आखिर में कुछ ऐसा लिखा था जिससे बर्नार्ड स्कॉर्शी के गुस्से में मजीद इजाफा हुआ। दरअसल उसके अंदर चैलेंज किया गया था कि मैं ठीक आज से 10 दिन बाद फिर से उस सेंसरियन कंपनी को हैक करने जा रहा हूँ, और इस बार मैं वो सीक्रेट डील वाली फाइल चुराकर हंगरी की गवर्नमेंट को दूंगा, और तुम लोग मेरा फिर भी कुछ बिगाड़ नहीं सकोगे। इसके बाद बर्नार्ड स्कॉर्शी और सेंसरियन ग्रुप वाले एक सीक्रेट मीटिंग करते हैं, और अपनी कंपनीज के सिस्टम को सिक्योर करने के लिए वो मजीद अच्छे साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हायर करते हैं। अब वो दिन आ जाता है जिस दिन अस्त्रा हैकर ने हैकिंग अटैक परफॉर्म करने का कहा होता है। अब सेंसरियन कंपनी वाले और डिसॉल्ट ग्रुप वाले सभी मोहतात थे। जैसे ही घड़ी के ऊपर सुबह के 10 बजते हैं तो उनके सिस्टम को हैक किया जाता है, और वो कुछ भी नहीं कर पाते। बस वो बेबसी से चुप होकर देख रहे होते हैं कि अस्त्रा हैकर कितना बड़ा तूफान है जिससे वो टकराकर बहुत ही ज्यादा बड़ी गलती कर बैठे हैं। सो अब उनके पास पछताने के अलावा और कुछ बचा भी नहीं था, क्योंकि इस बार अस्त्रा हैकर ने जैसे बोला था वो करके दिखाया, और उसने डिसॉल्ट ग्रुप और सेंसरियन ग्रुप के दरमियान होने वाली सीक्रेट डील की फाइल को हैक करके चुरा लिया था। सो अब उन सबको यही डर था कि अगर अस्त्रा हैकर सीक्रेट फाइल को हंगरी की गवर्नमेंट तक पहुंचा देता है तो सेंसरियन ग्रुप के ओनर्स का लाइसेंस कैंसिल होगा। सो वो अस्त्रा हैकर के साथ निगोशिएशंस करने की कोशिश करते हैं कि अस्त्रा हैकर को जितनी भी भारी रकम की जरूरत है वो उस वक्त उसे देने के लिए तैयार थे। सो अब आपके माइंड में यहाँ पर सवाल पैदा हो रहा होगा कि अस्त्रा हैकर ने इस कंपनी को ही क्यों सिलेक्ट किया और टारगेट किया। तो इसका जवाब बिल्कुल साफ है कि उसने बर्नार्ड स्कॉर्शी की वजह से ही इस कंपनी को अपना टारगेट बनाया, क्योंकि मैं अस्त्रा हैकर की इस सीरीज के पार्ट 2 में भी बता चुका हूँ कि बर्नार्ड स्कॉर्शी फ्रांस की इंटेलिजेंस एजेंसी में काम करता था, और उसने अक्सर और बेशतर अस्त्रा हैकर के हैकिंग अटैक्स को नाकाम भी बनाया था। सो इसलिए अस्त्रा हैकर बर्नार्ड स्कॉर्शी को अपना दुश्मन मानता था, और वो हमेशा ही उसको तंग करता रहता था, और इस बार भी उसने बर्नार्ड स्कॉर्शी की वजह से ही इस सेंसरियन ग्रुप को अपना टारगेट बनाया था। सो बर्नार्ड स्कॉर्शी अच्छी तरह से ये जानता था कि अस्त्रा हैकर ने उसे जो ईमेल करके कहा है, अस्त्रा हैकर उसी के मुताबिक हैकिंग अटैक परफॉर्म करेगा। सो उस दिन जब अस्त्रा हैकर ने बर्नार्ड स्कॉर्शी को ईमेल सेंड करके चैलेंज किया था, और बर्नार्ड स्कॉर्शी ने सेंसरियन ग्रुप के साथ मीटिंग की थी, सो उस मीटिंग के अंदर बर्नार्ड स्कॉर्शी ने सेंसरियन ग्रुप वालों के साथ मिलकर
बड़ी चालाकी के साथ एक खुफिया प्लान तैयार किया था जिसके जरिए वो अस्त्रा हैकर को पकड़ सकें। वो प्लान कुछ यूं था कि बर्नार्ड स्कॉर्शी और सेंसरियन की साइबर सिक्योरिटी की टीम मिलकर एक ऐसे हिडन स्पाई सॉफ्टवेयर्स तैयार करेंगे जिनके जरिए अस्त्रा हैकर की लोकेशन को ट्रैक किया जाएगा और फिर उन स्पाई सॉफ्टवेयर्स को उस सीक्रेट डील वाले फोल्डर के अंदर इस तरीके से इंस्टॉल किया जाएगा कि अस्त्रा हैकर जैसे ही उस फाइल को हैक करके अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल करेगा तो इससे वो सॉफ्टवेयर्स एक्टिव हो जाएंगे और अस्त्रा हैकर की लाइव लोकेशन उन सब के सामने आ जाएगी और इस तरीके से वो अस्त्रा को ट्रैक करके पकड़ लेंगे। और फिर बर्नार्ड स्कॉर्शी अस्त्रा हैकर से पिछले 6 सालों का हिसाब बराबर करेगा। और दूसरी तरफ अस्त्रा हैकर जब उस सीक्रेट डील वाली फाइल को ओपन करता है तो एग्जैक्टली बर्नार्ड स्कॉर्शी का प्लान वर्क करने लग जाता है और यूं अस्त्रा हैकर बर्नार्ड स्कॉर्शी और सेंसरियन ग्रुप की साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स की टीम के बनाए हुए जाल में फंस जाता है क्योंकि अब अस्त्रा हैकर की लाइव लोकेशन उन सब के सामने थी जो कि उन सब की लोकेशन से तकरीबन 5 किलोमीटर के फासले पर मार्क हो रही थी। यूं अब इस हैकिंग अटैक के अंदर हंगरी की पुलिस को भी शामिल कर लिया गया था। यूं बर्नार्ड स्कॉर्शी, हंगरी की पुलिस और सेंसरियन ग्रुप वाले भूखे शेरों की तरह अस्त्रा हैकर के पीछे जाते हैं मगर वहां पर पहुंचते ही उन सब को मिलता है इस कहानी का सबसे बड़ा सस्पेंस। होता कुछ यूं है कि अस्त्रा हैकर उनके वहां पहुंचने से पहले ही भाग चुका होता है और यूं अस्त्रा हैकर अपने पकड़वाने वालों के जाल में उन्हीं को फंसाकर वहां से भाग जाता है। लेकिन इस बार अस्त्रा हैकर को बहुत ज्यादा नुकसान भी पहुंचा था क्योंकि जब उसको पकड़वाने वाले वहां पर पहुंचते हैं वहां पर उनको एक पैसों से भरा हुआ बैग और अस्त्रा हैकर के सभी हैकिंग गैजेट्स मिलते हैं जिनको वो डिफरेंट हैकिंग अटैक्स परफॉर्म करने के लिए यूज किया करता था। मगर अब उन तमाम लोगों के माइंड में एक ही सवाल चल रहा था कि आखिर कोई इंसान इतना तेज कैसे हो सकता है कि अपने दुश्मन को उसी के जाल के अंदर फंसाकर भाग जाए और इसका दुश्मन उसका कुछ बिगाड़ भी ना पाए। आखिर ये सब कैसे हो सकता है और अस्त्रा हैकर इतने मजबूत जाल में से कैसे बचकर भाग सकता है? ये एक ऐसा सवाल था जिसके जवाब का इंतजार उस वक्त सभी लोगों को था। सो ये बात तो अब बिल्कुल क्लियर थी कि अस्त्रा हैकर ने इस कंपनी को हैक एक्सटर्नल हैकिंग अटैक परफॉर्म करके नहीं किया बल्कि कंपनी के अंदर ही कोई गद्दार ऐसा मौजूद है जो अस्त्रा हैकर की मदद कर रहा है और उन लोगों को अस्त्रा हैकर के खरीदे हुए उस गद्दार की जल्दी से जल्दी पहचान करनी होगी वरना उन्हें बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचेगा। सो अब हंगरी की पुलिस इस केस को बारीकी से इन्वेस्टिगेट करती है। तब उनको पता चलता है कि वो गद्दार शख्स कोई और ना था बल्कि सेंसरियन कंपनी की साइबर सिक्योरिटी टीम का हेड था जिसने बर्नार्ड स्कॉर्शी को इस बात पर कन्विंस किया था कि उन लोगों को ये स्पाई सॉफ्टवेयर डेवलप करना होंगे अगर उन लोगों को अस्त्रा हैकर को पकड़ना है तो। सो इसके बाद हंगरी की पुलिस उस सेंसरियन कंपनी की साइबर सिक्योरिटी की टीम के हेड को पकड़ती है और उससे इन्वेस्टिगेशन करती है कि आखिर उसने इतनी बड़ी गद्दारी क्यों की। तो फिर ये राज खुलता है जो कि मैंने इस वीडियो के स्टार्ट में आपको बताया था कि अस्त्रा हैकर ने पहली बार सेंसरियन कंपनी को जब हैक किया था उससे तकरीबन 2 महीने पहले ही सेंसरियन ग्रुप ने एक बग हंटिंग का कंपटीशन करवाया था जिसमें सेंसरियन कंपनी ने अपने सिक्योरिटी सिस्टम को प्रोटेक्टिव बनाने के लिए ये कंपटीशन ऑर्गेनाइज करवाया था और इस कंपटीशन में हिस्सा लेने वाले भी तमाम कंट्रीज से आए हुए बड़े बड़े एथिकल हैकर्स थे और इस कंपटीशन को एलेक्स जॉर्डन ने विन किया था। लेकिन ये वही एलेक्स जॉर्डन ही था जिसको अस्त्रा हैकर ने इस कंपटीशन से पहले खरीद लिया था और अस्त्रा हैकर ने ही उनके सर्वर्स को हैक करके उसको ये कंपटीशन जितवाया था क्योंकि अस्त्रा हैकर ये अच्छी तरह से जानता था कि सेंसरियन ग्रुप को बाहर से हैक करना लगभग नामुमकिन ही है। इसके लिए उसे अंदर से ही किसी शख्स को हायर करना पड़ेगा जो कि इस हैकिंग अटैक में उसकी मदद कर पाएगा क्योंकि हंगरी कंट्री इस सेंसरियन ग्रुप के सिक्योरिटी सिस्टम को एडवांस से एडवांस बनाने के लिए हर साल तकरीबन $50,000 मिलियन की भारी रकम खर्च करता था।
सो इसी वजह से अस्त्रा हैकर ये जानता था कि वो बाहर से कभी भी इस कंपनी को हैक नहीं कर सकता, इसलिए उसने एलेक्स जॉर्डन को ही खरीदा था। और बाद में सेंसरियन कंपनी वाले उस एलेक्स जॉर्डन की हैकिंग स्किल से इतना इंस्पायर थे कि उन्होंने उसको इस कंपनी की साइबर सिक्योरिटी टीम का हेड बना दिया। सो फिर हंगरी की पुलिस वाले एलेक्स जॉर्डन से इन्वेस्टिगेट करते हुए पूछते हैं कि क्या उसने अस्त्रा हैकर का चेहरा देखा था। तो इस सवाल के जवाब पर एलेक्स जॉर्डन साफ साफ इनकार कर देता है और वो बताता है कि उसकी और अस्त्रा हैकर की कम्युनिकेशन डार्क वेब के जरिए हुआ करती थी और डार्क वेब के जरिए ही अस्त्रा हैकर उससे अपनी सारी की सारी प्लानिंग से आगाह करता था और इन सब के बदले में अस्त्रा हैकर उसे बहुत ज्यादा भारी रकम भी दिया करता था, जिसके लालच में वो अस्त्रा हैकर का साथ दिया करता था। लेकिन यहाँ पर एलेक्स जॉर्डन पुलिस वालों से एक बात छुपाता है, तो इसके बाद अदालत एलेक्स जॉर्डन को तकरीबन 5 साल की कैद और भारी फाइन भी कर देती है। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट था कि अस्त्रा हैकर ने अभी तक सेंसरियन और फ्रांस के द सैल्यूट कंपनी के सीक्रेट बिजनेस डील को गवर्नमेंट के सामने रिवील नहीं किया था। बस यही सवाल उस वक्त सबके माइंड में था। इसकी वजह से सेंसरियन ग्रुप और डिसाल्ट ग्रुप वाले अंदर से बहुत डरे हुए थे कि किसी वक्त भी अब उन दोनों कंपनीज का सीक्रेट काम करने का राज फाश हो सकता है। असल में कुछ यूं हुआ था कि उसी दौरान ही अस्त्रा हैकर सेंसरियन कंपनी के ओनर्स को डार्क वेब के जरिए एक मैसेज सेंड करता है, जिसमें वो कहता है कि उसके पास अभी तक सीक्रेट डील की फाइल मौजूद है जो कि वो कभी भी गवर्नमेंट को सेंड कर सकता है। बस इसी वजह से वो लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं और ये सारे का सारा प्लान जो कि सीक्रेट स्पाई सॉफ्टवेयर्स को उस फाइल के अंदर डाला गया था, ये प्लान भी अस्त्रा हैकर का ही था। और वहां पर अपने हैकिंग गैजेट्स और पैसों से भरा बैग छोड़ने का प्लान भी अस्त्रा हैकर का ही था। इसके कुछ दिन बाद ही अस्त्रा हैकर फिर से सेंसरियन कंपनी के ओनर्स को डार्क वेब के जरिए मैसेज करता है और उनको अपनी डिमांड बताता है कि उसे तकरीबन $8 लाख एलेक्स जॉर्डन की रिहाई चाहिए। क्योंकि मैंने आपको पीछे वीडियो में बताया था, जब एलेक्स जॉर्डन से हंगरी की पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है तो वो उनसे एक सवाल छुपाता है। वो सवाल दरअसल ये था कि अस्त्रा हैकर की हैकिंग जर्नी लिखने वाले और बहुत से साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स और बहुत सारी रेडिट की पोस्ट के अंदर भी ये दावा किया गया है कि एलेक्स जॉर्डन असल में अस्त्रा हैकर ही था और वो शख्स जो दोनों ग्रुप्स के साथ निगोशिएशंस कर रहा था वो शख्स कोई और था और अस्त्रा हैकर ने उस शख्स को खरीदा हुआ था। सो अस्त्रा हैकर की कहानी में अब ये एक ऐसा मिस्टीरियस क्वेश्चन था जिसका जवाब अभी तक नहीं मिल सका कि एलेक्स जॉर्डन ही अस्त्रा हैकर था या फिर वो बाहर वाला शख्स जो कि सेंसरियन ग्रुप के ओनर्स को मैसेज करके अपनी डिमांड बता रहा था वो अस्त्रा हैकर था। यूं इसके बाद एलेक्स जॉर्डन और पैसों को अस्त्रा हैकर के हवाले किया जाता है, मगर पुलिस अब इस केस को सॉल्व करने के लिए अपने साथ एक और तगड़े एथिकल हैकर को मिलाती है जो कि एक बहुत ही अच्छा रिवर्स इंजीनियर था, जिसे ये काम दिया गया था कि वो अस्त्रा हैकर के हैकिंग गैजेट्स जो कि उन लोगों को उस रात मिले थे उन तमाम हैकिंग गैजेट्स की प्रोग्रामिंग को ब्रेक करके ताकि उन लोगों को अस्त्रा हैकर के खिलाफ कोई सॉलिड सबूत मिल सके। और वो शख्स ऐसा ही करता है, लेकिन अस्त्रा हैकर हमेशा वहां से सोचता है जहां से उसको पकड़वाने वालों की सोचें खत्म होती हैं और उन लोगों को अस्त्रा हैकर के हैकिंग गैजेट्स के अंदर कुछ भी ऐसा नहीं मिलता जिसके जरिए से वो अस्त्रा हैकर को पकड़वा सके। और एक बार फिर आसानी से अस्त्रा हैकर अपने पकड़वाने वालों के जाल से निकल जाता है। अब तकरीबन 2 सालों तक अस्त्रा हैकर खामोश रहता है। इसके बाद वो वापस आता है पहले से भी ज्यादा खतरनाक हैकर के रूप में। ये बात थी 2008 की। अब चूंकि अस्त्रा हैकर ने फ्रांस के ऊपर पिछले 4 सालों से कोई भी बड़ा हैकिंग अटैक परफॉर्म नहीं किया था, सो इसलिए फ्रांस के तमाम ही सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस एजेंसीज वाले अब ये समझ चुके थे कि अब शायद अस्त्रा हैकर फ्रांस की किसी बड़ी कंपनी को टारगेट ना बनाए, क्योंकि
उनके मुताबिक हंगरी के अंदर उसके तमाम हैकिंग गैजेट्स उससे छीन लिए गए थे और कोई भी बड़ा हैकर अपने हैकिंग गैजेट्स के अलावा दूसरे हैकिंग गैजेट्स को अच्छे तरीके से यूज नहीं कर सकता। मगर वो ये नहीं जानते थे कि हंगरी की उस बड़ी कंपनी सेंसरियन के ऊपर हैकिंग अटैक परफॉर्म करने के पीछे भी अस्त्रा हैकर का एक बहुत बड़ा प्लान शामिल था, क्योंकि अस्त्रा हैकर का असल टारगेट तो कुछ और ही था। दरअसल अस्त्रा हैकर ने हंगरी की सेंसरियन कंपनी को सिर्फ और सिर्फ इसलिए हैक किया था कि फ्रांस की टॉप साइबर सिक्योरिटी टीम्स और इंटेलिजेंस एजेंसियों का उसके ऊपर से ध्यान हट जाए और वो आसानी से ध्यान भटकाकर अपनी प्लानिंग को अच्छे तरीके से सक्सेसफुल बना सके। और अब अस्त्रा हैकर अपने सबसे बड़े हैकिंग अटैक को परफॉर्म करने के लिए बिल्कुल तैयार था, जो कि अब उसने अपना एक ऐसा बड़ा टारगेट चुना था जिसको हैक करने का इंतजार उसको काफी अरसे से था। उसने फ्रांस की टॉप साइबर सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइडर कंपनी थेल्स को अपना टारगेट बनाया। थेल्स एक ऐसी बड़ी साइबर सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइडर कंपनी थी जो कि न सिर्फ फ्रांस की कंपनीज को बल्कि दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों की कंपनीज को अपनी सर्विस प्रोवाइड करती थी। दरअसल अस्त्रा हैकर ने इस कंपनी को इसलिए अपना टारगेट बनाया था कि इस कंपनी की साइबर सिक्योरिटी की टीम अक्सर अस्त्रा हैकर के बड़े बड़े हैकिंग अटैक्स को नाकाम बनाया करते थे, जो कि वो फ्रांस की डिफरेंट कंपनीज के ऊपर किया करता था। बस इसी वजह से थेल्स कंपनी अब अस्त्रा हैकर के निशाने पर थी और अस्त्रा हैकर हर हाल में इस कंपनी को तबाह बर्बाद करके इस कंपनी को एक सबक देना चाहता था कि जो कोई भी अस्त्रा हैकर के रास्ते में आएगा वो उसे मिटा देगा, क्योंकि थेल्स कंपनी का काम ही यही था कि वो बाकी बड़ी बड़ी कंपनीज को साइबर सिक्योरिटी की सर्विसेज प्रोवाइड करती थी। सो उस कंपनी को हैक करना बिल्कुल भी आसान काम नहीं था। सो इसके लिए अस्त्रा हैकर ने यूज किया था हैकिंग की दुनिया का एक बहुत ही फेमस हैकिंग अटैक, जिसे हैकिंग की दुनिया मैन इन द मिडल अटैक के नाम से जानती है। सो इसके बाद अस्त्रा हैकर मैन इन द मिडल अटैक को यूज करके वो थेल्स कंपनी के सभी सर्वर्स को हैक कर लेता है। यूं इतना बड़ा खतरनाक हैकिंग अटैक परफॉर्म करके अस्त्रा हैकर थेल्स कंपनी वालों को भी सबक सिखा देता है और इसके बाद थेल्स कंपनी की साइबर सिक्योरिटी टीम कभी भी अस्त्रा हैकर के रास्ते की रुकावट नहीं बन सकी। यूं कोई नहीं जानता कि वो कौन है, कोई नहीं जानता कि वो कहाँ है, और बस सिर्फ उसका एक फर्जी नाम सबको पता है, जो कि है अस्त्रा।